નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ફરી એકવાર એક અદ્ભુત સેશનમાં જેમાં આજે તમને એક સરપ્રાઈઝ મળવા જઈ રહ્યું છે. આજે હું જેમની સાથે વાત કરવા જઈ રહ્યો છું એ ગુજરાતનું ગૌરવ છે. એમના ગીતો તમારા બધાના પ્લેલિસ્ટમાં કંઈ કેટલાય સમયથી टॉप 10 में से. ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर. કેમ છો? अरे ये ट्विनिंग कैसे हो गया? अरे I don't know. Maybe it's the telepathic connection. सीरियसली ये जबरदस्त ट्विनिंग हो गया भाई. देखिए सर, जब दिल मिले हुए तो फिर कपड़ों की क्या बात है. आपको पता है क्या, मैं आपको कुछ देर पहले फोन किया ना कि मैं लाइव जा रहा हूँ. जी. सो आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ टी शर्ट. मैंने कहा मैं रेगुलर जो रोज पहन रहा था ना उससे बोर हो गया था. અને Oh my God. હા, હું મારા વોર્ડરોબમાં એક સડનલી મેં આમ હાથમાં કઈ બી લીધું ને પહેરી લીધું એમ. Oh my God, મારી હારે સેમ વસ્તુ થઈ. And my mom told me કે તું પહેલા તું કાળા ટી-શર્ટ દરરોજ પહેરે, કાળા ટી-શર્ટ આજે નહીં પહેરતો, આજે કંઈક કલરફુલ પહેરે. સેમ વસ્તુ મારા ઘરમાં મમ્મીએ કીધું કે તું પેલું કારણ કે અમિત ત્રિવેદી સાથે વાત થઈ ત્યારે બ્લેક પહેર્યું હતું મેં. Yep. How are you? કેમ છો ધનિતભાઈ? એકદમ મજામાં ભાઈ. સો હેપી ટુ સી યુ. Same here and many congratulations. કારણ કે તમે જે રીતે બધી વસ્તુ, actually congratulations is a wrong word. તમને we have to thank you for bringing such experimental entertainment and so much valid information to us, especially your interview with that sister of ours from Surat. એ જોઈને ખૂબ ઇન્સ્પિરેશન મળી અને ખૂબ સાચી ઇન્ફોર્મેશન મળી. થેન્ક યુ સો મચ ફોર ડુઇંગ ધેટ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર કાઇન્ડ વર્ડ્સ. અને લોકડાઉનમાં બધા જ આખા દેશમાં જેટલા પણ કલાકારો છે બધા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે પોતપોતાની રીતે કંઈ ને કંઈ નવું કરવાનો. એમાં અમારું એક નાનકડું એક कीड़ी જેટલું कंट्रीब्यूशन. ओके, सो नाउ आपके जितने भी फैंस ये देख रहे हैं उनमें से कई सारे ऐसे होंगे जो गुजराती नहीं समझते हैं. सो वील डू अ मिक्स एंड मैच. कभी हम गुजराती में बात करेंगे, कभी हम हिंदी में बात करेंगे. और हाँ, सो रोज मैं ना अंताक्षरी खेलता हूँ. अरे मस्त मजा. चलो पहला હું મારું કીબોર્ડ બાજુમાં મૂકી દીધું મેં. બોલો તમે. तो एक छोटा राउंड अंताक्षरी हो जाए, उसके बाद कुछ और लोग जुड़ते हैं तो वी हैव अ सरप्राइज. आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू आल्सो. आई हैव थॉट ऑफ अ कॉन्सेप्ट. यस, आई हैव थॉट ऑफ अ कॉन्सेप्ट. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. पर पहले एक छोटा राउंड अंताक्षरी का हो जाए. ओके, चलो. હું શરૂ કરું? हाँ बिल्कुल, તમારા કોઈ ફેવરિટ ગીતથી શરૂ કરો. ઓકે. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. न सुर. हाँ. नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा. આમાં તો અમારા આર્ટિસ્ટ मेरी आवाज. હા, તમારું તો આ તો તમારા મતલબ પ્રોફેશન નું ગીત છે. બરાબર, તમે ગાઓ. मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे. हाँ. ओके, આ મારું ફેવરિટ સોંગ છે. વન ઓફ ઇટ્સ કાઇન્ડ, દિલીપ સેન, સમીર સેન. अरे वाह. पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह हो शाम. जानू I love you, you love me. जानू I love you, you love me. ઓલા લાંબા વાળા સૈફ અલી ખાન વાળું ગીત. टंग डंग 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 टंग डंग डंग डंग. કેવો ટાઈમ હતો ધનિતભાઈ
કે ગીતો તો આપણને યાદ રહેતા હતા, પણ ઇન્ટરલ્યુડ ના પીસીસ પણ યાદ રહેતા હતા. યાર ક્યાં ગયો અરે એ ટાઈમ મને ખબર સિરિયસલી. નથી. અને જી. ઇન્ટરલ્યુડ્સમાં તો એવું છે કે મને તો હું છે ને મોટો થયો ને એના પછી મને એવું ખબર પડી કે લોકોને આ રીતે ગીતો યાદ નથી રહેતા. મને આખા આખા ઇન્ટરલ્યુડ સાથે યાદ હોય તો મને એમ કે બધાને એ જ રીતે એબ્સોલ્યુટલી. યાદ રહેતું હશે. પછી આ તો મોટો થયો પછી ખબર પડી કે બધા આ રીતે યાદ નથી રાખતા એમ. હમ. સો તમે એમ કહ્યું કે દિલીપ સેન સમીર સેન ને કારણે આ ગીત તમારું ફેવરિટ છે. મારા માટે આ જી. ગીતમાં ફેવરિટ છે કાજોલ. ઓ માય ગોડ, તમે જો દુખતી નસ પર હાથ ના રાખો પ્લીઝ, એવું ના કરો. કાજોલ Okay, યાર, so absolutely she's gorgeous in this song. Yes. so બોલો બોલો બોલો. I have heard that you work for a lot of music composers and you work for Dilip Sen, Sameer Sen as well. ધેટ્સ રાઈટ, ધેટ્સ રાઈટ. એવું છે ધોનકભાઈ, કે અમે જ્યારે શરૂઆત કરી તો અમે શરૂઆત રાજેશ રોશનજીના ત્યાંથી કરી. Hmm. એન્ડ ધેન વી જોઈન પ્રીતમ સર, અને પ્રીતમ સર સાથે ખરેખર અમારું કાસ્ટિંગ થયું. એ અમારા ગુરુ જેવા છે. હજુ પણ અમારો એલ્બમ રેડી થાય તો અમે પ્रीतम सर ने एक बार जैसे संभळावी. हाँ, तो ये है कि हमारी शुरुआत जो है वो राजेश रोशन जी से हुई, और फिर उसके बाद हमने प्रीतम सर को असिस्ट किया. प्रीतम सर के यहाँ हम बहुत सीखने को मिला. वो इंसान ही ऐसे हैं कि जिनसे सीखने को बहुत मिले. पर उनके साथ काम करने के बाद हमने करीब 7 या 8 और म्यूजिक कंपोजर के साथ काम किया, जिसमें से एक नाम संदेश शांडिल्य जी का भी है, अनु मलिक सर का भी है, ए आर रहमान सर के लिए भी हमने काम किया, और दिलीप सेन समीर सन जी के लिए भी किया. वाओ. तो मैं आस्क यू कि रहमान सर के लिए आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया था? जी, उन्होंने एक्चुअली यूके बेस्ड एक रेडियो स्टेशन के लिए एक जिंगल बनाई थी. और ओके. मुझे याद है कि रहमान सर से जो मुलाकात हुई वो बस 11 सेकंड्स की मेरी मुलाकात हुई, वो भी स्काइप कॉल पे. और मेरे भगवान, मतलब जिनके कारण मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ, और उनसे मैं मिला. और ऐसा होता है ना धनित भाई, कि अपने को ऐसा लगता है आज दिखा दूं सारे कॉर्ड लगा के ना, तो अरेंजमेंट में C-7 डी ऑगमेंटेड सब लगा दिया था. तो अरेंजमेंट तो उनको सुनाया, और उन्होंने सुना. और पता है, आप रेमन सर से अगर आपने बात की तो ही इज अ मैन ऑफ हाँ. फ्यू वर्ड्स. जब भी बोलते हैं तो उन्होंने बोला, नाइस, बट इट्स a simple song ना, can you keep it simple? એટલું કીધું, and then he left. Now think about him, that legends don't need to say much. That's what they say about legends. And then we stripped down almost 30 or 40 layers. We stripped from our arrangement, and well, Rahman sir is Rahman sir. So a lot of people ask me कि आपको किसका इंटरव्यू करना बहुत अच्छा लगता है. तो हाँ. अगर कोई मुझसे ये पूछे कि किसका इंटरव्यू करना बहुत मुश्किल लगता है तो वो रहमान सर. हाँ. बिकॉज अरे मैं इतना लंबा सवाल पूछूंगा वो इतना सा जवाब देंगे. तो जो पेलो अंदाज अपना अपना डायलॉग હતો ને कि मेरे दो सवाल उनका एक एक जवाब, मेरे दो सवाल उनका एक एक जवाब, दो सवाल एक एक जवाब. I know, well, मतलब वो लेजेंड है. आई थिंक ही एवरी टाइम ही हैज गिवन अस एन एल्बम. मतलब मैं धनित भाई आपके साथ वो भी शेयर करना चाहता हूँ कि जी. उन्होंने जब अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंट एल्बम निकाला, वंदे मातरम, हम्म. उसके प्रीफेस में उन्होंने लिखा हुआ था कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट इंडिया, आई वांट माय इंडिया टू बी दैट इंडिया जिसके यंगस्टर्स, जिनके वोकैबुलरी में चलता है नाम का कोई लफ्ज ना हो. So वाह think about the man and think about his thought, you know. वाह वाह. So long live his legend, long live एंड Rahman आई sir. स्टिल रिमेम्बर, मुझे गूजबम्स हो रहे जब उन्होंने ऑस्कर का जो स्पीच दिया था जय हो के Oh वक्त पे. my God, एंड मेरे ही पास सेड माँ है. मेरे पास माँ है. कांट फॉरगेट दैट मोमेंट. Oh my God, absolutely, यस. absolutely, सो absolutely. अच्छा चलिए हम अंताक्षरी पे वापस आते हैं. तो आपने तो गाना दिया था. आजा, I love you, you love me, जानो, I love you, you love me. माँ. मेरे दिल में आज आहा. क्या है तू कहे तो मैं बता दूं. तेरी Wow. जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं. मेरे दिल आहा. में आज क्या है तू आहा. कहे तो मैं बता दूं. Wow, what a song you sang, यार. Super, मजा आ गई. तो बता द दूं द
द बता दू, राइट? द ना? द द दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। तरनद 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 तरनद। અચ્છા આ ગીતમાં શરણાઈનો ઉપયોગ બહુ સરસ થયો છે ઇન્ટરલ્યુડમાં. Oh, amazing, amazing. Ta 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 ra ta ra ra ta ra ta 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 ra 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 ra. એવું કંઈક હતું યાર. યસ યસ ગજબ. રામ લક્ષ્મણ અને સુરજ બરજાત્યાની જોડી. Amazing. यस. तो आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. सलमान खान हैज पुट अप अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम. Oh, I saw it. Iconic. सुपर वीडियो कि अगर मैंने प्यार किया आग बनती तो क्या होता. तो किस पे वो मतलब सैनिटाइजर मार के सुपर वीडियो है वो. અમેઝિંગ અમેઝિંગ. સી તને મને એવું લાગે કે जो लोग मतलब जब लोग बड़े होते हैं ना, तो ये दिस इज द फन थिंग अबाउट ग्रोइंग ओल्ड. ओके, लोग अक्सर कहते हैं यार आई डोंट वांट टू ग्रो ओल्डर देन 16, बट हे there's fun in growing old too, because look at Amit ji, look at what he did with his Instagram, and even the way he posts about his father and all that, and look at Salman now. Look how mature that post is. I really enjoyed it. Yeah, बहुत अच्छा. શું આવ્યું મારે? तुम्हारे ये पग समझाने से समझे ना ना. ना. ओके. नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे. अमेजिंग यार नुसरत साहब, क्या बात है, क्या एक बात. काम करते हैं, चलिए आप वो सरप्राइज खोल देते हैं जो मैं आपके लिए लेके अच्छा. आया हूँ. देखिए अब ओके. जो हम गाने गा रहे हैं वो अलग अलग लेजेंड्स के गाने हैं. और आप अब तक बहुत सारे लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर्स को मिले हैं, उनका इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली हम पूरी जनरेशन पे है, हम सब पे है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो लेट्स प्ले अ गेम जहां पर मैं एक लेजेंड का नाम बताऊं और आपको उस लेजेंड का आपका पसंदीदा गाना जो है वो उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए गाना है. Oh my God, this is amazing. Okay, shoot away. तो बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट ये किया होगा कि हम सचिन जिगर से उनके गाने गवाएंगे, लेकिन आज तो एक काम करते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं. सचिन जिगर के गाने तो हम डेफिनेटली सुनेंगे ही सुनेंगे, विल डू अनदर लाइव सेशन, बट आज हम ट्रिब्यूट देते हैं बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स को. व्हाट्स इट? अमेजिंग, सुपर. ये देखिए, इसीलिए वी लव यू गणेश भाई, इसीलिए वी लव यू बिकॉज़ ऑफ योर इनोवेटिव आइडियाज. बोलिए सर, शूट अवे. चलिए, तो जैसे मैंने पियारे पियारे गाया, तो वो जो दौर था, वो जो एक पॉप गानों का दौर था, जब हम वीडियोस देखते थे, म्यूजिक वीडियोस, वो एक फिर से आया है, फिर से म्यूजिक वीडियोस बन रहे हैं. हर म्यूजिक कंपोजर सिंगर अपने हिसाब से वीडियोस बनाता है और उसका काफी चलन भी है. तो लेट मी टेक यू बैक टू लकी अली डेज. ओह माय गॉड, माय ऑल टाइम फेवरेट. ठीक है, तो देखिए, अलग तो कॉन्सेप्ट भी है, तो मैं भी आपको इन लेजेंड्स के ना थोड़े थोड़े हटके गाने सुनाता हूँ. ठीक है, मे बी नॉट ऑल, बट जैसे इनका एक गाना है जो लकी अली का गाना है. लकी अली के हजारों गाने हैं जो बहुत अच्छे अच्छे गाने, बट इनका एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, ये गजल है दरअसल. आप पर अर्ज़ है लाखों करोड़ों अरबों सलाम, आप ना होते तो ये दिल जानने किसको देता, जानने किसको देता दुआ. आपकी इनायतें, आपकी इबादतें हैं, आप
आपकी वो बंदे नवाजी, आपका वो शर्मीलापन, लहराते जाऊं, रुक नहीं पाऊं, दिल को मैं अपने बहलाते जाऊं, आप पर अर्ज है लाखों करोड़ों अरबों सलाम। क्या है ना बात ब्यूटीफुल है, गाना? बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। जी उनका मुझे वो जी। बहुत अच्छा लगता है, गोरी तेरी आंखें, जो कविता जी के साथ ओहो, उन्होंने गाया है। आहा, क्या गाना ब्यूटीफुल है। सॉन्ग, अमेजिंग अच्छा, सॉन्ग, अमेजिंग सॉन्ग। अभी अभी चूज करते हैं हम्म। जगजीत सिंह। ओह, देखिए, ओ माय गॉड, ધોનીત ભાઈ, અ, જગજીત સાહેબનું સંગીત છે ને, એમનું, उनकी सिंगिंग, उनकी मौसीकी अ, किसी भक्ति से कम नहीं थी। मुझे उनके किसी भी गाने में, मतलब, अ, चलो क्या उनके बारे में बात करूं, उनका एक गाना गाता हूं मैं, बहुत छोटा हूं उनके बारे में बात करने के लिए, और बहुत इमोशनल हो जाऊंगा मैं उनके बारे में बात करते करते। तो इनका फेवरेट जो मेरा गाना है वो मैं गाता हूँ, ठीक है? हम्म। हाँ, देखिए। ओके। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, हजारों ख्वाहिशें। ऐसी हजारों ख्वाहिशें में से एक ख्वाहिश थी कि कभी उनके साथ काम करने का मौका मिले। अगर वो होते तो माना कि हम यार नहीं, मैं उनसे गवाता, मतलब हाँ 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 हाँ, अगर जगजीत ये मतलब गाते माना कि हम यार नहीं, तो क्या बात ओ होती। माय गॉड, मैं, मतलब यहाँ तक कि जगजीत जी के बारे में तो सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि, मतलब, ध्वनित भाई, इतने सारे, ढेर सारे परफॉर्मर्स होते थे। मुझे एक किस्सा शेखर भाई ने बताया, क्योंकि शेखर भाई उनसे तालीम लेते हैं। हम्म उन्होंने बताया कि जब वो रियाज करते थे, हम्म मानो कि उनका शो है भाईदास में रात को 9 बजे, तो आप हम्म जानते हैं कि मंडे को उनकी बुकिंग खुलेगी और ट्यूसडे को स्टैम्पेड होके हाउसफुल हो जाएगा। हाउसफुल मतलब इस किस्म का हाउसफुल कि गैंगवे में भी लोग बैठे होंगे, स्टेप्स पर भी हम्म लोग बैठे होंगे। हम्म तो शो है 10 बजे और आज वो शाम को रियाज कर रहे हो, तो रियाज करे तो खटके लगा रहे, ये खटका वो खटका, ये हम्म मुर्की वो मुर्की। तो शेखर भाई ने उनसे पूछा कि जगजीत जगजीत जी, आप ये खटके और ये मुर्कियां आप लगा रहे हो, पर आपको कभी इस तरह से गाते हुए सुना नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक्सरसाइज है बेटा, ये एक्सरसाइज है, इसको शो में नहीं करना है। शो में तो वो गाना है कि जो भाव को उजागर कर सके, जो शब्दों के बोल को, जो वाजिब वाह ताने हैं वो ताने हैं। वाह वाह वाह। बाप रे, लेजेंड लेजेंड लेजेंड, ट्रू लेजेंड। मेरे, मतलब, रोंगटे खड़े हैं उनके बारे में बात करके। थैंक यू फॉर डूइंग दिस टू मी। तो और बताइए सर। तो बहुत खुशकिस्मत ऐसे कंपोजर्स रहे हैं जिन्होंने जगजीत जी से गवाया हो, जैसे कि आदेश जी। श्रीवास्तव। आदेश ओ माय श्रीवास्तव गॉड। ने जगजीत जी से बहुत अच्छे गाने गवाए। फिर जतिन ललित। तो एब्सोल्युटली। तो तो जतिन ललित का कोई गाना अगर आपको बहुत अच्छा लगता हो तो। ओ माय गॉड, मतलब जो हमारी जोड़ी है ध्वनित भाई, उस जोड़ी का एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है लाइफ में, वो है जतिन ललित। उनके गाने सुन के, उनको देख करके मुझे और जिगर को इंस्पिरेशन मिली कि नहीं यार, इकट्ठा भी तो काम कर सकते हैं। और कितनी सारी जोड़ियां रही हैं, लेकिन जतिन ललित का काम, जो मेलोडीज, उनका जो फेवरेट गाना, मैं, जो मेरे लिए जो उनका सबसे फेवरेट गाना है, जतिन ललित और मेरे बचपन के आइडल, क्योंकि लाइफ हम्म। में कभी मैं सिर्फ कुमार शानू बनना चाहता था, तो ये इनका कॉम्बिनेशन। कभी ओके। कुमार सानू बनना चाहते थे। जेन्युइनली, जेन्युइनली मुझे कभी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कंपोजर बन पाऊंगा। और उनसे बहुत बचपन में मुलाकात हुई थी, तो उनको देखा था, उनका डिमीनर, उनका वॉइस, उनका एक रुतबा था।
I was flawed, and that's all I wanted to be. Until 93 Roja happened to all of us. तो ये मैं जतिन ललित का गाना पूछा था. ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए. ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए. बस नग़्मे तेरे प्यार के गाते जाए. ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए. हो Amazing, बस amazing. अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रख दे कदम. हो बस गाओ. ओ बस अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रख दे कदम. सारा जहां ढूंढ लाए, बस नग़्मे तेरे प्यार के गाते जाए. ये गाना मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है. और ओह, मजरू ओह और माय गॉड, मजरू साहब का करियर कोई देखे 6 ओह माय डिकेड्स. गॉड, अरे ओह माय साहब, गॉड, ही इज अ लेजेंड. मतलब मतलब द्वारिक भाई, मतलब मैं कहता हूँ हमेशा कि मेरे लाइफ के 3 बड़े रिग्रेट्स हैं. हम्म, एक रिग्रेट है कि कभी किशोर दा के साथ काम करने का मौका नहीं मिला. एक रिग्रेट है कि जगजीत सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला. एक रिग्रेट है कि आनंद बख्शी साहब के साथ काम करने का मौका नहीं मिला. ओ और अगर अगर उतना प्यार, अगर उतनी मोहब्बत अगर मैं किसी और लिरिक राइटर से करता हूँ जितनी मैं आनंद बख्शी साहब से करता हूँ, देन दैट इज मजरूर सुल्तानपुरी सर. क्या वाह. मतलब, क्या मतलब उन्होंने जो कमर्शियल मेन फ्रेम हिंदी गाने जिस तरह, जितनी मतलब पोइटिक सेंस के साथ लिखे, कमाल कमाल कमाल. और बताइए तो सर, और बताइए. आपने किशोर दा का नाम ले ही लिया है तो किशोर कुमार का गाना तो बनता है सर. ओके, देखिए आप शायद ये गाना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, पर किशोर दा के कितने गाने होंगे, मतलब कितने गाने होंगे, बट ये उनका गाना ना, मतलब मेरा फेवरेट 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 गाना है. तो ये सुनिए. हम्म, हम्म, वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद. वो अचानक आ गई. आप गाइए, आप गाइए. यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद. ओ चेहरे चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई. फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई. अमेजिंग, अमेजिंग दीवाना किशोर दा. तेरा ओ हो, ओ हो, तुझे सोनू ही निगम. बुलाए. ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए. Oh my God. And his combination with साजिद वाजिद, हम्म, जो दीवाना कितने दीवाना. गाने, माय गॉड. हाँ. जी, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छे अच्छे गाने. ओ माय गॉड. यार बहुत बहुत कमाल का ये बंदा, और कमाल की उनकी सिंगिंग. पर इनके गाए हुए गानों में से सोनू निगम की अगर हम बात करें तो, अच्छा मैं थोड़ा सा स्केल चेंज करता हूँ, ठीक है. जी जी. दिल दीवाना, हो दीवाना है ये दिल, दीवाने ने हम मुझको भी कर डाला दीवाना.
उसने ना 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 तारा 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 ना 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 को कहता है ये दिल दीवाना ओ दीवाना है ये दिल। थैंक यू। मेरा और जो लिरिक्स का जो नाता है ये तो मेरे ऑडियंस अभी तक जानते हैं, मेरे फैंस मुझे माफ कर देते। दिल की खता भी है क्या, ओहो। मुझको गिला भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या, आशिक है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं, ये दिल दीवाना ओहो। दीवाना है ये दिल। ओह माय गॉड, यू आर सिंगिंग जस्ट लाइक हिम। क्या बात है भरत भाई, मजा आ गई। थैंक यू। वीजू शाह। ओह ओके, क्या आप इसके बारे में ना बात नहीं करते? लेट मी जस्ट गिव यू माय फेवरेट सॉन्ग ऑफ हिज। कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने कहा, कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने कहा, अब हम क्या करें क्या सुने, जब दिल बातें करने लगे। ओ अब हम क्या करें क्या सुने, जब दिल बातें करने लगे। अब देखिए, मतलब ये विजुषा है। हाँ, तो इनका ये कंपोजिशन का स्टाइल है और ये कितना सिमिलर है टू कल्याण जी, आनंद जी। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। टन 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 टन। वाह वाह माय वाह गॉड, वाह वाह, मजा मजा। लेजेंडरी लेजेंडरी। साधना सरगम ने गाया था वो गाना। फिल्म थी ओह माय तेरे मेरे गॉड। सपने, तेरे मेरे सपने, हरिहरन साधना सरगम। ओ या। मतलब ढेर सारे गाने हैं साधना जी के, आपने जो बताया वो भी गाना है। बट कैन आई सिंग ए डिफरेंट सॉन्ग ऑफ साधना सरगम इफ यू अलाउ मी? हाँ, व्हाई नॉट। हाँ। ओके, तो ये जो गाना है ये साथिया का गाना है और ये मेरे चुपके भगवान का से गाना है, चुपके ए से आर रहमान। चुपके से चुपके यस से। यस यस यस। दोस्तों से झूठी मूठी। ओके ओके, एक सेकंड, इसको ना मैं ढंग से थोड़ा सा करता हूँ। ओके, एक सेकंड। ओके। दोस्तों से झूठी मूठी दूसरों का नाम लेके तेरी मेरी बातें करना यारा, रात से दिन करना। अरे सर, ये तो क्वारंटीन का गाना है। दोस्तों से झूठी मूठी दूसरों का नाम लेके तेरी मेरी बातें करना यारा, रात से दिन करना। क्वारंटीन वाली लाइन आई। लंबी जुदाई तेरी बड़ा मुश्किल है, आंखों से दिल भरना यारा, आंखों रात से दिन करना। और एक लाइन। कब ये पूरी होगी दूर ये दूरी होगी, कब ये पूरी होगी दूर ये दूरी होगी, रोज सफर करना यारा, रात से दिन करना। चुपके से लग जा गले रात की चादर तले, ओ चांद की भी आहट ना हो बादल के पीछे चले,
जले कतरा कतरा, जले कतरा कतरा, रात भी ना हिले आधी आधी, रात भी ना हिले आधी आधी, चुपके से लग जा गले, रात की चादर तले, ओ चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले। ओहो माय गॉड, साधना जी के साथ मैंने काम किया है। उनसे मैंने एक्चुअली एक गुजराती गाना गवाया था, कैरी ऑन केसर में। तो उनसे मुलाकात जब हुई तो मैंने उनको इस गाने के बारे में पूछा था कि व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड व्हेन यू वर सिंगिंग दिस सॉन्ग। तो साधना जी, आप जानते हो आप कैसी हैं, वो इतना मतलब वो ना ऐसा टेडी बेयर जैसी हैं वो। तो वो मुझे बोल रही है, ऑनेस्टली बताऊं सचिन? मैंने बोला हाँ बताइए दीदी। तो बोल रहे, मेरे मन में ना बहुत डर चल रहा था। एक तो सामने रहमान सर बैठे हुए थे और दो माइक ऐसे लगा रखे थे मेरे सामने, बिकॉज रहमान सर रिकॉर्ड समटाइम्स इन स्टीरियो। सो तो शी वाज सेइंग कि आई वाज रियली सो फ्राइटेंड एंड। और बताओ मतलब कैसा उन्होंने गाया। धनित भाई, एक टाइम था जब एक दिन में ना मतलब मिनिमम 35 टाइम्स ये गाना सुनता था मैं, मतलब ऑन द लूप रिपीट, फुल ब्लोन स्पीकर्स पे मतलब। तो लॉन्ग लिव ओरिजिनल म्यूजिक, लॉन्ग लिव रहमान सर एंड लॉन्ग लिव ऑल दीज लेजेंड्स। गुलजार साहब ने ये गाना लिखा था। और मैंने गुलजार साहब का जब इंटरव्यू किया था तब मैंने उनसे पूछा था कि कभी कभी आपके गाने हम जैसे लो आईक्यू के लोगों के समझ में नहीं आते, तो आपको गानों के साथ एक मार्गदर्शिका, एक गाइड भी पब्लिश करनी चाहिए। सब तो टाइटल्स। तो उन्होंने कहा तुम्हें कौन सा समझ में नहीं आया? तो मैंने कहा देखिए, अब मुझे हाँ आप ये बताइए कि रात को चोरी चुपके से नंगे पांव चांद आएगा। तो मैंने कहा ये नंगे पांव चांद क्यों आता है, मुझे कुछ समझ, चांद क्यों नंगे पांव आ रहा है? तो ही एक्सप्लेन धीमे 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 आता नो है। नो नो नो, ही सेड देखो कहानी क्या है, ही सेड कहानी ये है कि हाँ। लड़का और लड़की ने शादी कर ली है, मिल नहीं पा रहे हैं, हम्म। मिलने का कोई जरिया नहीं है। वो तो तो लड़का चांद क्या, वो जरिया है। हाँ नहीं, चांद खुद लड़का है। इसे ओ। चांद तो मेटाफर है, चांद और लड़का नीचे से गुजरते वक्त वो क्या करता है, वो एसटीडी बूथ पे फोन करता है, तो वो हाँ, मैसेज राइट राइट दे रहा राइट। है कि देखो ओ हमदम सुनियो रे, ओ जानिया सुनियो रे, शाम को मैं वहां से गुजरूंगा, शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पांव चांद आएगा। अब लड़की चांद की आए, ओ माय गॉड। अब ही सेड दैट, देखो अगर लड़की कहाँ रहती है, इसे लड़की कहाँ रहती है, मैंने कहा ऊपर के फ्लोर पे रहती है। तो ही सेड अगर ऊपर के फ्लोर तक उसको पहुंचना है तो खिड़की के जरिए जाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ जाना पड़ेगा। इसे इधर अगर खिड़की तक चढ़ना है तो क्या जूते पहन के चढ़ेगा वो? तो नंगे पांव जाएगा तभी चढ़ पाएगा ना खिड़की में। ओ माय गॉड, ये तो गुलजार साहब ही कैसे। और मैं आपको बताऊं, जब उनको दिल से के लिए बेस्ट लिरिक्स अवार्ड मिला था, तो ही वेंट ऑन स्टेज एंड नाउ दिस इज गुलजार फॉर यू। ही गोज ऑन स्टेज, ही रिसीव्स हिज अवार्ड, देन ही गोज टू द माइक एंड सेज, thank you Rahman and Mani Ratnam for not understanding Urdu so that I could write lyrics like चल छैया छैया छैया। और उसमें कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं, आयत और ये और वो। ओ माय गॉड, तो दैट इज गुलजार फॉर यू। गुलपोश कभी इतराए, कहीं महके तो नजर आ जाए, कहीं तावीज बना के पहनूं से आयत की तरह आयत मिल की जाए तरह कहीं, मिल मेरा जाए कर, नगमा वही तेरा मेरा नगमा कल। वही मेरा दिल। ओ या सुपर, अमेजिंग अमेजिंग। वाह वाह वाह। अच्छा, ऐसे और कौन कौन से कलाकार हैं जिनको हम और याद कर, रहमान साहब का कोई और गाना? अच्छा अच्छा एक देखिए मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रहमान साहब का कोई ऐसा गाना जो शायद हिंदी में ना हो और किसी और भाषा में हो? ओ ओके देखिए, सी आई एम सबर्बियन बॉय, ठीक है। तो हम्म बॉम्बे में आई ग्रू अप इन घाटकोपर एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ साउथ इंडियन कॉलेज कॉल्ड SIS, ठीक है। तो मेरे सारे जो दोस्त है ना, दे वर ऑल तमिलियंस हम्म एंड थैंक्स टू देम आई कुड हैड द फर्स्ट हैंड एक्सेस टू रहमान सर तमिल एल्बम्स। बिकॉज ओके जब रोजा आई तो रोजा के 2 साल बाद बॉम्बे आई, या हम्म 3 साल बाद बॉम्बे आई। बॉम्बे हम्म के वापस 3 साल बाद या 2 साल बाद रंगीला आई। तो हम्म हम तरसते थे क्योंकि वो हमारे लिए गीता था, मतलब उनका म्यूजिक गीता होती थी।
तो हम तरसते थे, तो मैं अपने दोस्तों को कहता था कि यार वो कैसेट मुझे थोड़े दिनों के लिए दे दे, और हमारा एक फैन क्लब था एंड वी यूज्ड टू शेयर कैसेट्स। हम्म। तो एक गाना है जो तमिल में है, एंड मतलब आई होप दैट आई एम नॉट किलिंग द तमिल इन इट, बट जितना मुझे याद है, और मेरा फेवरेट गाना, मैं ट्राई करूंगा बाद में आपको हिंदी में भी सुनाऊंगा, पर पहले उसको मैं तमिल में आपको गा के सुनाता हूँ। प्लीज। ஓ நெற்றியில்லாத மாற்றம் என்னடா, காற்று என் காதிலேதோ சொன்னதா, இதுதான் காது என்பதா, இளமை பொங்கி விட்டதா, இதயம் சிந்தி விட்டதா, சொல்லு மனமே, कल नहीं था वो क्या है आज ये, कह रही है हटाए आज ये, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, जो मन में। હવે બહુ જ બધા લોકો રિક્વેસ્ટ કરે છે કે તમે ગુજરાતી ગીત તો Okay. ગાઓ, એટલે ગાવું તો પડશે જ. श्योर श्योर, ओके। देखिए हमने पहले गुलजार साहब की बात करी ना, तो गुलजार साहब का वो गाना था, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, आर डी बर्मन गुलजार कॉम्बिनेशन। तो उसमें अंतरे में एक बात आती थी, तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, चांद को रोकना। तो I was in Australia apparently for shows, and I was in Brisbane, and I was on that. There's a beautiful bridge. I'm sure you know, Dhanesh bhai, तुमने गया हो तो it's a beautiful pedestrian bridge in Brisbane. So I was sitting there. It was full moon, and I was thinking of this song, and this lyric inspired me so much that I came up with. चांद ने कहो के आजे हाथ में नहीं, चांद ने कहो के आजे हाथ में नहीं, रात वही जाए ना, बात रही जाए, आ जो नरेन भाई की जादूगरी से, रात वही जाए ना, रा वो रात तो वही जाए ना, बात रही जाए ना, आ बात अधूरी आज, हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम, ओ हमदम। એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ બાત बताता हूँ. जब मैंने पहली बार जी सुना, જ્યારે મેં પહેલી વાર સાંભળ્યું હતું ચાંદ ને કહો, so I जी, was reminded of a very similar I meaningful know. song. I will sing. I will sing it for you before you sing it for me. कहो पूनम ना चांद ने आज उगे आथमनी ओर, ओ पूनम ना चांद ने आज उगे आथमनी ओर, के मारा मनडाना में मारा जीवन संगीत લઈને આવ્યા છે મારી પ્રીત, કહો પૂનમના ચાંદને आज ઉગે આથમની ઓર. That's right. Am I right? Is this the song? Yes, you are right. There is another song as well. Okay. કહું બીજું? Please go. अब सुर एक मिनट. हाँ. कल 14वीं की रात थी, शब भर ओह. रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी,
कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने आहा, कहा चेहरा तेरा कल 14वीं की रात, चौदहवीं की रात थी। ओहो क्या चांदने बात का है। हो आजे आंख Yeah, में। oh my God. Oh my God. Something about the moon is so romantic and it has inspired so many beautiful love songs. અચ્છા સચિનભાઈ, મલ્હાર ઇઝ ધેર. મલ્હાર જેમના માટે તમે Oh, ફિલ્મોમાં મ્યુઝિક આપ્યું, એમાં વાલમ આવો ને ખૂબ જી, પોપ્યુલર. હવે મલ્હારની જી, કંઈક જી, જી. ડિમાન્ડ છે. મલ્હાર એક રિક્વેસ્ટ કરી રહ્યો છે, નાટકનું સોંગ. Hmm. હી ઇઝ આસ્કિંગ ફોર અ નાટકનું સોંગ. કોઈએ ના સાંભળ્યું એવું Oh, ગુજરાતી નાટકનું સોંગ સંભળાવો તમે. okay, okay, okay. જો આવું તો બધું પાછું મલ્હાર જ માંગી શકે. આપણે મલ્હાર બી એવો છે, મસ્ત એક યુનિક એક કેરેક્ટર છે. જેટલું મ્યુઝિક આ છોકરો સાંભળે છે, આઈ ડોન્ટ નો ઇફ પીપલ નો the kind of music library he has and the kind of music he listens. And when he goes to the set also, Sandeep was telling me that he'll play his playlist fully loud ekdam. એટલે મજા લેર એકદમ. And no wonder it reflects in his personality that, યસ યસ ઇટ that ડઝ. અલ્લડપણું. Hmm. Okay. તો ઓકે, તો મેહુલ બૂચ, અલ્પના બૂચને તમે ઓળખતા જ હશો, આપણા થિયેટરના એક્ટર્સ. યસ યસ ઓફકોર્સ. તો મેહુલભાઈ was one of my mentors theateરમાં. And so under him I did a lot of plays. Okay, my very first play with Mehul Booch was where he was acting, where Sharman Joshi's father, Arvind Joshi, directed that play. तो तब उनसे मुलाकात हुई मेहुल बूच से, और फिर उन्होंने मुझे मेरा पहला म्यूजिकल प्ले करने का मौका दिया. ગુજરાતી પ્લે હતું અને ગીત પણ ગુજરાતીમાં છે. અને પ્લે કા નામ था અમસ્તા મસ્તા, અને આ ગીત લખ્યું છે સ્નેહાએ. ઓકે, સ્નેહા દેસાઈ. સ્નેહા દેસાઈ. તો એને ગાયું છે સોલી કપાડિયાએ. ઓકે, તો જી, તો તમને સંભળાવું. અમથો અમથો સાવ મસ્તો કોણ ગમે છે, નિંદર ઓઢી શમણા સાથે કોણ રમે છે, મન તો ચાહે ઈશ્વરથી પણ મોટો થઈ હું રોબ જમાઉં, મન તો ચાહે ઈશ્વરથી પણ મોટો થઈ હું રોબ જમાઉં, જોતા તુજને સાવ અચાનક મુझ અંતરમાં કોણ રમે છે, વાહ વાહ વાહ. અમથો અમથો સાવ મસ્તો કોણ ગમે છે, નિંદર ઓઢી શમણા સાથે કોણ રમે છે. વાહ 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 વાહ, ક્યા બાત હે, ક્યા બાત હે. જી જી જી. સો આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર કે જ્યારે મેં તમારો પહેલો ઇન્ટરવ્યુ કર્યો, ફર્સ્ટ ટાઈમ વેન વી મેચ, ત્યારે પેલું સિક્રેટ જી. ખુલ્યું હતું કે ટૂટા જો કભી તારા, એની અંદરનું જે મ્યુઝિક છે એ એકચ્યુઅલી તમે પહેલા જી. એક ગુજરાતી નાટક માટે કરેલું હતું. So it was a play, it was a musical skit called Love.com. અચ્છા, આ Love.com ના કેરેક્ટર્સ જે હતા, જે અમારી બેન્ડના મેમ્બર્સ હતા, એનું નામ જોઈ કે જે બધા મહારથીઓ, તો પોતાના વખાણ તો ન કરે પણ હું એમાં હતો. પછી અમિત ત્રિવેદી એમાં હતા, પછી અનુષા મની એમાં હતા, પછી નરેશ આયર એટલે કે રૂબરૂ વાળા નરેશ આયર એમાં હતા. એન્ડ કે ધોનીભાઈ, એવો લાઈફમાં એવો ટાઈમ હતો અમારાને કે 300 રૂપિયાનું કવર, 400 રૂપિયાનું કવર, પણ છે ને એ જે મેડનેસ હતી, અને ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ બીકોઝ ઓફ અમિત. નાઉ યુ સી ધીસ લેજેન્ડરી ગાય, Amit, he was always
અમારા પિયરમાં પણ છે ને ધ્વનિતભાઈ, અમે બધા એને ફોલો કરતા હતા. એટલે ધારો કે ઈ N364 કોર્ગનું કીબોર્ડ લઈ આવે ને તો અમે બધા જઈને લઈ આવે. ઈ એમ કે ને કે EMA નું સેમ્પલર ખરીદો તો અમે બધા. અને જે રો અમિત ત્રિવેદી મેં જે સાંભળ્યો છે, આઈ જસ્ટ હોપ કે નાઉ ધેટ હી ઇઝ આઝાદ, that raw Amit Trivedi is unleashed upon the listeners, because oh my God, that guy is so blessed and that guy is so talented કે ધનિભાઈ, આઈ હોપ એન્ડ પ્રે કે આઝાદની નીચે એવું બધું મ્યુઝિક એ કરી શકે કે જે જેની માટે એ બનેલો છે, અને જેને અમે જાણે, જેને અમે પ્રેમ કરીએ છીએ. તો જી આઈ હોપ that મ્યુઝિક કમ્સ આઉટ. એટલે એ love.com નું આ ટાઇટલ ટ્રેક હતું. ફરી એકવાર टूटा जो कभी तारा सजना वे तूने रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले आवे, जो मिले तो जाने ना दूंगा मैं. वाह, क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, कीर्तिदान गढ़वी has just joined us, so why not Oh, Kirtidan Kirti bhai's bhai. song? Why not ભાઈ Kirtibhai નું song? એમની સામે કેવી રીતે એમનું ગીત ગાવા તમે મને. ઓકે, સૌથી પહેલા if so many people are there and if Kirti bhai is there, firstly Dharit bhai, let me thank Kirti bhai in front of all these people. ધનીભાઈ, એવું થયું હતું કે ગુજરાતી કોક સ્ટુડિયો માટે અમને અપ્રોચ કર્યા હતા, અને અમને એ લોકોએ ગુજરાતી ગીત કરવાની ના પાડી દીધેલી. तो उन्होंने बोला था कि यार पंजाबी गाना बनाओ, पंजाबी गाना चलता है. तो हमने बोला कि करेंगे तो गुजराती में करेंगे या तो नहीं करेंगे, टेक इट और लीव इट. ठीक है, तो हम बोल के तो आए छाती ठोक के. हाँ, फिर मैंने जिगर को बोला गुजराती फोक क्या है समझना तो चाहिए, उतरना तो चाहिए, मतलब कहीं जाके सुनना समझना तो चाहिए. तो प्रिया ने हमको हेल्प की और हम कीर्तिदान भाई से मिले અને અમે એમને અમદાવાદમાં મળ્યા. અને કીર્તિભાઈ, તમે યુ સી નાઉ ધ મેન, અને આપણા ગુજરાતીઓની આ વાત છે કે એમણે છે ને જાણે એમનું હૃદય આખું આમ ખોલીને અમને આપી દીધું. 3 કલાક એ માણસે 6-7 કિલોમીટર એ ડાયલેક્ટ કેવી રીતના બદલાય, ગાવાની શૈલી કેવી રીતના બદલાય, અને ફોકનું જાણે ગુજરાત દર્શન અમને આપ્યું અને એવી રીતે આપ્યું. અને આફ્ટર ધેટ આઈ આસ્ક્ડ હિમ કે કીર્તિભાઈ, if this is the story, you tell us કે અમે લોકગીત બને તો કઈ રીતે બને એમ. તો એમણે અમને સમજાવ્યું કે લોકગીત એ ગીત છે કે જેનો મૂળ ભાવ એવો હોય કે જે દરેક ઘરનો ભાવ હોય, કે જે ભાવ જ લોકોનો ભાવ છે, એવું જે ગીત હોય એના પર લખાયેલું છે ગીત એ લોકગીત હોય. અને એવું ગીત છે કે એના પરથી એના ઓથરની સ્ટેમ્પ નીકળી જાય અને ગીત પછી છે ને કાયમ માટે લોકોનું બનીને રહી જાય. એને કહેવાય લોકગીત. So Kirtibhai, it is his greatness and it is his, inspiration that has, helped us come up with Ladki. And of course, Priya and Jigar and me, we've also wanted to thank all the Ladkis, Kaki na Rupma, Bhabhi na Rupma, Ben na Rupma. તમને છે ને 8:30 વાગે તમે કામ માટે નીકળો અને તમને યાદ આવે કે તમારા ખીચામાં રૂમાલ નથી ને તમે એમ બૂમ પાડો લાડકી, અને અનાયાસ તમારા મોઢામાંથી લાડકી નીકળ્યું, અને લાડકી જ્યાં પણ હોય, ડ્રોઈંગ રૂમમાં હોય, બાલ્કનીમાં હોય, ગાર્ડનમાં હોય, ત્યાંથી દોડતી દોડતી તમારો હેન્ડકરચીફ લેતી આવે. એને કોઈ ઓસ્કર એવોર્ડ નથી મળવાનો, પણ એ એની લાગણી છે. અને એનું સેક્રિફાઈસ અને એની લાગણી ના હોય ને તો અમારા જેવા વિરલાઓ ત્યાં ન હોય જ્યાં અમે ઉભા છે. એટલે અમે નક્કી કર્યું કે we will dedicate this to my elder sisters, Jigar's younger sister, and all the ladkis in this world. So Kirti Bapu, shat pranam tamne. Priya, thanks to your lyrics, and thanks to Jigar for making Tanishka a part of it. That was Jigar's idea, so I have to give full credit to him for that. And हाँ जी, sorry, बोलो. And Rekha ji, Rekha Didi, Kirtidan Bhai, and of course MTV Coke Studio for this. ઓરે ઓ પારે વેડા તું કાલે ઉડી જાજ રે મારી હાટું રહી જાને આજ ની રાત.
આંબળી ને પીપળી રે હે ઓલી આંબલી ને પીપળી રે જોશે તારી વાટ રે ભેળામણી કરશું યા મેરે ફરિયા તારી લાડકી સોરી મારી લાડકી તને ખમ્મા ઘણી મારી દીકરી તને ખમ્મા ઘણી મારી લાડકી રે રે નાનકડી ફરી ઝાલી લે મારો હાથ થોડું આમ ડૂચો ભરાઈ જાય ઘણી બધી વાર હજુ પણ સ્ટેજ પર ગાતી વખતે યુ નો નહીં મળે આઈ નો અચ્છા જો તમે આવી વાત કરતા હો ને તો તમને છે ને આગળ છે ને પ્રિયા એક લાઈન લખી છે તેરી લાડકી મેં रहूंगी तेरी लाडली मैं कितनी भी दूर तो से चाहे रहूं जरा आँच भी जो कभी मुझ पे थी आती भर जाती थी अखियां तेरी जाने है તું હવે જો આ લાઈન અને 90 આઉટ ઓફ 100 મેં પ્રિયાને આ લાઈન ગાતા ચોક થતા સાંભળી છે સ્ટેજ પર હું પણ ચોક થાઉં છું अब ऐसा भी क्या तेरा मुझसे वे ऐसा भी क्या तेरा मुझसे वे कर पराई मोहे मुख लिया क्यों फे पास ही अपने रख ले कुछ पास ही अपने रख कुछ देर उड़ जाएगा पाके होते sorry sorry just this you know it reminds me of my sisters નોનિતભાઈ જ્યારે ખુલશે લોકડાઉન તો I'm so sorry I just got so emotional because my sister calls me every day uh, oh, I'm so sorry. No, that's okay. They gave up. My elder sisters gave up learning music so that I could learn music, and they love me. They love me so much. હજુ મારી બંને બહેનો પરણીને સાસરે ચાલી ગઈ પણ મારા જીજાજીઓ એવા છે કે મને એવું લાગે કે એમને જોઈને એવું લાગે કે મારા બે મોટા ભાઈ છે મારું નવું ઘર લેવાનું હતું તો they were such a big support morally financially and my sisters મારા બે હાથ છે મારી બે બહેનો અને I still remember the night when we were letting them go એમના લગન હતા અને this was that feeling she was telling me कि पास ही अपने रख ले कुछ उड़ जाएगा पाके होते so I love my sisters and તમારી બેન હોય ધનતભાઈ I think sorry for making you all so emotional sorry for becoming so emotional okay No, it's okay. I'm just going to pep it up and just say this that guys આપણી રોજબરોજની જિંદગીમાં આપણી લાઈફની પેસમાં આપણે
ઘણી વાર ભૂલી જતા હોય છે કે જસ્ટ ટુ સે થેન્ક યુ, જસ્ટ ટુ સે આઈ લવ યુ, તમારો મોબાઈલ ફોન મૂકો 2 મિનિટ બાજુમાં અને યુ હેવ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ બી વિથ યોર ફેમિલી, ટુ સ્પીક ટુ યોર લવ્ડ વન્સ. જસ્ટ ધોઝ કોન્વર્ઝેશન્સ આર પ્રાઇસલેસ. ઘણી બધી વાર just call them and just tell them you love them. It means like a million world to people, just to express. અને ઘણી બધી વાર આપણે બોલી નથી શકતા હોતા, પણ I think this is the time. Let's turn all the negativity around us and make it all about love, because Lucky Ali said it. दे सकता हूं मैं थोड़ा प्यार यहाँ पर, इतनी हैसियत है मेरी. So that's what this is about. It's about loving each other and being there for each other. હા, તેરા ये आशियाना मेरा वो आशी. वाह वाह वाह. ओ अनजानी राहों में तू क्या क्या ढूंढता ढूंढता तेरे फिर दूर दूर जिसको समझा वो तो पास है तेरे. ढूंढता रहा दूर तो कहीं, उड़ते बादलों की तरह, कहीं से तुझे आई है सदा, लौट के आ अब जरा. ओ हो तेरा वो आशियाना, मेरा भी आशियाना. हो अनजानी राहों में तू क्या ढूंढता फिरे, दूर जिसको समझा वो तो पास. Somewhere, Dhanit bhai, this whole love for Gujarati and love for our culture and people make a big deal about it. જ્યારે ઘણા બધા લોકો મને ઘણી બધી વાર એમ કે क्या बात है, क्या बात है आप करते हैं. But it's about coming home. It's about just knowing who you are. It's about embracing કે તમે ક્યાંના છો. હું તમને કહું ધનિકભાઈ, હું જેન્યુઅનલી મારી માતૃભાષાને પ્રેમ કરું છું, જેન્યુઅનલી. અને એ વસ્તુ કેવી છે કે તમારે એ વસ્તુ તમે કેળવી ના શકો. આ વસ્તુ તમે જન્મથી તમારે હારે આવ્યું હોય. અને મને યાદ છે કે હું ગીર ગયો હતો, અમે શૂટ કરવા ગયેલા ધૂણી રે ધકાવી. હા, એ જે 3 દિવસો હતા ને ધનિકભાઈ, એમાં અમે અધડક લોકોને મળ્યા ત્યાં, આપણા બધા ગુજરાતી ભાઈઓને અને સાધુઓને, સંતોને અને ગાંઠિયા ખાધા બ્રેકમાં, અને જલેબી ખાઈને પેટ ભરીને કામ કર્યું ને શૂટિંગ કર્યું ને. અને આપણા બધા લોકો છે ને એકબીજાને મદદ કર્યા. ભાઈ તમારું ગીત છે, શૂટિંગ કરો, ચાલો હું તમારી જોડે ચાલું. પછી અમને એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય કે અહીંયા શૂટિંગ કરો, અહીંયા તમને સારી સિનરી મળશે. અને this is who we are. અને અમદાવાદ હું આવું ને તો જૈનમ આપણો જોડાઈ જાય મારી જોડે કે ભાઈ તમે આવ્યા છો, ચાલો હું આવું છું બેઝ ગિટાર લઈને. થેન્ક યુ સો મચ સચિનભાઈ, લોટ્સ ઓફ લવ ટુ યુ.